الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد زفران ہوں تقریر زفران ولاگ امید کرنے کے سارے پیڑا پڑا ٹھیک ٹھاک ہو تو اللہ پاک نے حفظ ایمان چسو تو اپنی زندگی سوڑے طریقے بسر کرنے پہ سو آج نے حفظ ویڈیو نکات کری چکی ہیں زاری کا ساتھ ہمیں تک کس میں پتہ لگی ایسے ویڈیو کس نے متعلق کی تو کس بارے کا لگی ٹھیک ہے تو آسان اس لیے جہریاں جی سنڈل مقام پر اتھے نماز جنازہ یہ ٹھیک ہے تو اتھے نماز جنازہ یہ اتھے وہ ویڈیو بنائی سو ساتھ ساتھ ویڈیو اینڈ تک لازمی پھر تک ہے ٹھیک ہے ویڈیو لائک شیئر تو چینل لائک سبسکرائب لازمی کرے ٹھیک ہے تو باقی ان شو ویڈیو نکاس کرنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات شرکاء جنازہ اللہ رب العزت جل شانہ کی دی ہوئی امانت یہ زندگی جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کی زبانی نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے بلکہ مقررہ وقت پر ہر بندے نے اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی طرف ضرور منتقل ہونا ہے مرحومہ مئی صاحبہ نے ایک طویل عمر اپنی گزاری ہے زندگی کے آخری ایام بیماری کا سامنا کیا ہے اور بندہ مومن کی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بڑی عجیب شان ہے کیونکہ بندہ مومن کو اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے کوئی شادمانی پہنچتی ہے کوئی مسرت ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر مزید راضی ہوتا ہے اور بندہ مومن کی یہ بھی شان ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے رنج و غم پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس پر وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ پھر بھی اس پر راضی ہوتا ہے یعنی دونوں حالوں میں بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر اور بلائی ہی بلائی کا سامان ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ زبان پر کلمہ شکر ہی اور کلمہ صبر ہی ہونا چاہیے اور یہ ساری شانیں یہ ساری عظمتیں یہ سارے درجات اللہ رب العزت جل شانہ ایک بندہ مومن کو جو عطا فرما رہا ہے تو یہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد یہ سارے اعزازات دیے جا رہے ہیں یہ کلمہ شریف کی برکت ہے یہ حضور کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا رب ارشاد فرماتا ہے ہم اس کا بدلہ اس کو 10 نیکیاں 10 اجر عطا فرمائیں گے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها اور جو کوئی برائی کر کے لائے گا تو اس کا عمل اسی برائی کے مثل ہے یعنی چاہیے تو یہ تھا قانون کے مطابق دستور کے مطابق اور ضابطے کے مطابق کہ نیکی کا بدلہ ایک ہی نیکی ہونی چاہیے بدی کا بدلہ ایک ہی برائی کا گناہ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں کہ مالک کائنات اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کتنی وہ شفیق ذات ہے کتنی وہ مہربانی کرتا ہے اور کتنا اپنے بندوں کو نیکیوں میں لالچ دے کر وہ اپنے بندے کو کامیاب و کامران اور سرخرو کرنا چاہتا ہے
कितना अपने बंदे पर मेहरबानी फरमा कर उसको जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, कितना अपने बंदे पर मेहरबानी नवाज़श और शफकत फरमा कर अपने बंदे को जन्नत के महल्लात का वारिस बनाना चाहता है, जन्नत की नहर उसे हमकिनार करना चाहता है, जन्नत के अंदर जाकर अपना दीदार अपने बंदे को अता फरमाना चाहता है। क्यों? इसलिए कि रब अपने बंदे पर मेहरबान है। ज़ाब्ते के मुताबिक तो एक नेकी पर एक ही अजर, बुराई पर एक ही गुनाह, लेकिन हुजूर का उम्मती होने की वजह से रब इस दस्तूर और इस कानून को ख़त्म फरमा कर गोया एक बंदा मोमिन को ये शान अता कर रहा है और ये फजीलत और ये दर्जा अता कर रहा है कि बंदा मोमिन तूने जो नेक अमल किया, नेकी की तो मेरी रजा की खातिर नेकी की। मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तू एक नेकी करके लाएगा, मैं मालिक के कायनात का वादा है कि उस एक नेकी पर मैं तुझे 10 नेकियां अता फरमाता चला जाऊंगा, 10 अजर अता फरमाता चला जाऊंगा। और इसी कानून के मुताबिक चाहिए तो ये था, अगर नेकी पर 10 अजर मिल रहे हैं तो बुराई पर भी 10 गुना मिलने चाहिए, लेकिन नहीं। देखें रब की कितनी शफकत और मेहरबानी है, और मैं नेकी करेगा 10 अजर अता फरमाऊंगा, और बुराई करेगा तो इस बुराई का बदला एक ही गुना तेरे नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब देखें कि मालिक के कायनात अपने बंदे पर कितने शफीक और शफकत और मेहरबानी और नवाजश और इनायत फरमाने वाला है। और यही वो बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु दुनिया के अंदर भी अपने बंदे पर, वो बंदा जो रब की रजा हासिल करने के लिए छोटा सा भी अमल करता है, लेकिन उसके अंदर इखलास, उसके अंदर रब की रजा, उसके अंदर रब की खुशनुदी और रब की बारगाह से सवाब और अजर की उम्मीद लेने के लिए बंदा अमल करे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, दिखलावा नहीं, बनावट नहीं, रियाकारी नहीं, अमल के अंदर तशन्नु और बनावट नहीं। जब बनावट और हर किस्म की दिखलावे से पाक अमल लेकर अगर राई के दाना के बराबर भी बंदा मोमिन अमल करता है, लेकिन उस अमल के अंदर रब की रजा मकसूद है, तो रब उस बंदे के अमल को राई के दाने के बराबर नहीं रहने देता, बल्कि पहाड़ों की मिसल उस एक छोटी सी नेकी पर भी अपने बंदे को अजर और सवाब अता फरमाता चला जाता है। ये सारी नवाजिशें क्यों हैं? हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने की वजह से ये शर्त मिल रहे हैं। जब रब हमारा इतना शफीक है, जब हमारा वो रब अपने बंदे पर इतनी मेहरबानी करने वाला है, तो हमारे दिल के अंदर भी जरूर ये हया और ये शर्म जरूर आनी चाहिए कि हम एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक घड़ी, एक एक लहजा, एक एक सांस और एक एक सांस पर रब की कितनी हुदूद तोड़ते चले जाते हैं, कितनी सरकशी करते हैं, कितनी नाफरमानी करते हैं। आप देखें, अगर हमारे साथ हमारे जो मताहत रहने वाले लोग हैं, हमारी औलाद है, अगर एक बार उसको कोई बात कहते हैं नहीं मानती, दूसरी बार कहते हैं, तीसरी बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, दूसरे हफ्ते में फिर कहते हैं, माँ के बाद फिर कहते हैं, 2, 3, 4, 10, 15 मरतबा मोहलत देते हैं। जब फिर भी बच्चा और बच्ची हमारे मतहत रहने वाले लोग अगर हमारी बात न माने तो फिर हम सरदनश करते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, कभी उनको सजा देते हैं। ये तो एक हमारा इंसाफ है कि हम जब एक ही बात कई बार अपने बच्चों को कहें वो ना माने, हम उनको सजा देते हैं। रब ने हमें अपनी बारगाह में झुकने का कितनी बार हुक्म दिया? 700 से जायद बार अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, मुख्तलिफ अंदाज के साथ, मुख्तलिफ अंदाज और तरीके और सलीके के साथ, कभी जहन्नुम की आग से डरा कर, कभी अपने दीदार का लालच देकर, कभी जन्नत का वादा फरमा कर, कभी कुछ और फजीलतियां अता करके बार बार रब अपने बंदे को अपनी बारगाह में झुकने का हुक्म दे रहा है। जब अगर हमारे मतहत रहने वाले हमारी बात ना माने तो हम सजा देते हैं। चाहिए तो ये था कि जिस तरह हम बगावत करते हैं, जिस तरह हम सरकशी करते हैं, जिस तरह खुले आम हम रब की नाफरमानी करते हैं, जिस तरह उसकी हुदूद और कुयूद को एक एक सांस पे तोड़ते हैं, चाहिए तो ये था कि हम एक सांस भी जीने के काबिल ना हों। लेकिन हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनकी होने का ये शर्फ अजीम हासिल है कि नाफरमानी करने के बावजूद भी रब का अजाब नहीं आ रहा, रब शक्लें नहीं बिगाड़ रहा, रब हमें सजाएं नहीं दे रहा। वजह क्या है? वजह यही है कि रब मोहलत देना चाहता है, रब हमें फुर्सत दे रहा है, रब हमें बार बार टाइम दे रहा है, और रब बार बार हमारी आजमाइश कर रहा है कि कहीं ऐसा हो कि बंदा दूर जाने के बाद पलट के मेरी बारगाह में आकर झुकने वाला बन जाए। झुकना बंदे का काम है, और मालिक के कायनात जल्ल शानुहु उस बंदे को दुनिया में भी कब्र की तारीक कोठरी को भी रोशन करके आखिरत के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु
उस बंदे को नेकियों के बदले में अपना दीदार अजीम अता फरमा दिया करता है। ये सारी नवाजिशें क्यों हैं? कि कलमा शरीफ की बरकत है। हुजूर का उम्मती होने के लिए ये शर्फ अजीम हासिल है, सारा कुछ पीछे रह जाता है। जिस तरह हजरत इब्न जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जो नेकियां करके कब्र के अंदर जाता है, कब्र की उस तारीक कोठड़ी में उतरने की देर होती है, नमाज सरहाना की तरफ आके खड़ी हो जाती है, ज़कात दाएं तरफ खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, दिगर नेक अमाल पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आजाब उस बंदे की तरफ कब्र के अंदर सरहाने की तरफ आता है तो नमाज आगे से रोक लेती है कि मैं इसकी हिफाजत करने वाली हूँ। दुनिया में रहकर इस बंदे ने मेरी हिफाजत की है, मुझे पढ़ा है, मुझे संभाल के रखा है, मेरी हिफाजत की है, मेरी इज्जत और तकरीम की है। मैं नमाज वो हूँ जो बंदे ने दुनिया के अंदर संभाल के रखी, आज मैं कब्र के अंदर भी इसका साथी बनकर इसकी हिफाजत करने वाली बन जाती हूँ। तो हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए नमाज को कायम करो, रोजे का हक अदा करो, फरमाया कि ज़कात अदा करो, नेक अमाल इकट्ठे करो, इसलिए कि कब्र के अजाब से रब्बे काबा तुम्हें बचाता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम हमें नेक अमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। मरहुमा मई सबा के इस साले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पर अहले खाना ने कुछ रकम वक़्फ़ करने का इरादा फरमाया है। वो मसाजिद की रकम जो है वो हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब के पास है। नमाज जनाजा के बाद मसाजिद के मुतवल्लिन अपनी अपनी मस्जिद का हिस्सा उनसे वसूल कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करना इस वीडियो पसंद आई, इसी वीडियो लाइक शेयर तो चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। बाकी अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।